Hello students, how are you? I hope you do fine in your houses. See, today I'm among you all to start a new lesson. Can be said this is the first lesson of Beehive of your textbook class 9th. In class 9th there are two textbooks, you know, Beehive and Moments. In Beehive we have already done a poem, The Road Not Taken, but the first lesson, this is very first lesson, the fun they had, we haven't done still. So to start the same lesson, I am over here. All the unfamiliar words will be written on the board, and other things what are being given in the text, if you don't understand, that will be also made you understand. You have to comment only on that if you feel any problem while going through the reading section of this very lesson. So let us start. The fun they had, as it has been written already, the fun they had. आइजैक असिमोव के द्वारा ये लिखा गया द फन दे हैड, एक साइंस फिक्शन है. ये क्या है? तो एक साइंस फिक्शन है. साइंस फिक्शन क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ. लेट अस सी. ऐसे जो स्टोरीज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में इनको बांटा जाता है. इनके स्टोरी का जो ग्राउंड होता है उसके आधार पे. पहला हो क्या? पहला आपको हो गया फैक्ट एंड सेकंड फिक्शन. फैक्ट और फिक्शन ये दो बातें हैं. ये दो तरह की स्टोरीज आपको मिलते हैं. फैक्ट्स क्या है? दे आर बेस्ड ऑन रियल हैपेनिंग्स, रियल स्टोरीज. फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समथिंग इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग हैपेंड रियली, मतलब जो सचमुच हुआ था उसके आधार पे जो कहानी लिखी जाती है उसको फैक्ट कहा जाता है. और जो कल्पना पर आधारित होता है उसको हम फिक्शन कहते हैं. तो दिस इज द फन दे हैड. दिस इज ऑल्सो अ फिक्शन, बट दिस इज अ साइंस फिक्शन. जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी. रोबोट मूवी क्या है? ये भी एक साइंस फिक्शन पे बेस्ड मूवी है. उसी तरह द फन दे हैड है. इसको ये आइजैक असिमोव ने लिखा है. आइजैक असिमोव द फन दे हैड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे. और इनकी यह जो साइंस फिक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले इसके बैकग्राउंड को समझेंगे. आज हम लोग इस लॉकडाउन के अवधि में, when we are not coming to schools, you are unable to see your teachers, unable to study in the classroom in front of your teachers, means real जो real teaching, और it can be said that is not virtual, काल्पनिक नहीं है. या आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल टीचिंग. फिजिकल टीचिंग मीन्स योर टीचर इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर ऑल्सो अवेलेबल, देन दिस इज फिजिकल टीचिंग. But there is some virtual type of teaching. This is virtual teaching. I am somewhere else, you are somewhere else, you are sitting in your houses, in front of your computer, in front of your mobile. I am also in front of my gadget and teaching you. This is virtual teaching. Then this has happened only because of advancement of science. This has happened today because of advancement of science. Just you flashback some years back or ask your grandfather or granny that 20 years back or 30 years back how did they go to school. Was it possible as we are studying today those days? क्या उन दिनों यह संभव था जो आज हम लोग अभी जो कर रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या लाइव क्लासेस ले रहे हैं, या क्या उन दिनों संभव था? ऑफ कोर्स दे विल से नो, this could not be possible those days. Why? Because such instruments, such devices, such gadgets were not invented those days. This is why these things were not possible. Now this was the past. Now children, you think over the matter for a while and think 100 years later, not ago, now later. अब 100 साल आगे सोचिए या 150 साल आगे सोचिए, तब क्या होगा? What would happen 150 years ahead, hence 150 साल बाद क्या होगा? This is to be thought. इसको ज़रा सोचिए कि आज हम लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि 150 साल बाद the study room of the children would be their school. Study room ही उनका स्कूल होगा and the teacher would be a computer teacher or a robot teacher.
this would appear on the computer screen and it would start teaching the children of those days. Of those days means after 150 years. 150 साल बाद क्या होगा, तो एक हो सकता है एक स्टडी रूम होगा, वहीं बच्चों का स्कूल होगा और कंप्यूटर के द्वारा बातें पढ़ाई जाएंगी और टीचर रोबोट के रूप में कंप्यूटर में ही आएगा। अलग अलग जो टीचर्स होंगे, अलग अलग उनका वो सॉफ्टवेयर होगा, अलग अलग हो सकता है ऐप्स होगा, ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई होगी। तो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड ऑन द सेम इमेजिनेशन दिस story, The Fun They Had, has been written by Asimov, Isaac Asimov और Asimov Isaac। तो let us see word to word। अब इसको word to word पढ़ करके देखते हैं। ऊपर से देखिए, before you read, the story we shall read in the set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas। कह रहा है कि ये स्टोरी जो है फ्यूचर पे बेस्ड है कि जब किताबें नहीं होंगी, नोटबुक्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, उनका अस्तित्व ही नहीं होगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। जब नीचे जो डायग्राम दिया गया है, क्या डायग्राम दिया है आप अपने बुक में देख सकते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अभी जब आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे तो कैसे पढ़ रहे थे आप? ऐप डाउनलोड कर रहे थे, उस ऐप से अपना टेक्स्ट बुक निकाल रहे थे और उसका चैप्टर सर्च करके पढ़ रहे थे। तो द सेम थिंग वुड हैपन आफ्टर 150 ईयर्स और 100 ईयर्स, 1 century लेटर द सेम वुड हैपन। एंड ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम इमेजिनेशन, दिस वेरी लेसन द फन दे हैड हैज़ बिन रिटन बाय ये आइजैक असिमोव। अब देखिए, तो रोबोटिक टीचर होगा, मूविंग ई टेक्स्ट होगा। अब टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं और उस समय ई टेक्स्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा जो मूविंग होगा, कंप्यूटर पे ऐसे चलता रहेगा, रन करता रहेगा, बच्चे उसे देखते रहेंगे। और वर्चुअल क्लासरूम होगा, रियल क्लासरूम नहीं, फिजिकल क्लासरूम नहीं, फिजिकल क्लासरूम और रियल क्लासरूम। द क्लासरूम व्हाट वी आर स्टडिंग इन विच वी आर स्टडिंग, मतलब वो क्लासरूम जिसमें हम लोग, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वो रियल क्लासरूम है। अ वर्चुअल क्लासरूम, your room will be your classroom with computer sets or other devices and there the robotic teacher will appear on the screen and it will start teaching। तो वो आपका वर्चुअल क्लासरूम होगा। ये कल्पना है मात्र, अभी होगा नहीं। जैसे रोबोट में कल्पना है, उसी तरह से ये कल्पना है। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ करके देखते हैं इस स्टोरी को। पहला पैराग्राफ शुरू होता है, लिखता है, मार्जी even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book। अब मार्जी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो लिखती है अपनी डायरी में, एक रात अपनी डायरी में लिखती है, उसको डायरी एंट्री की आदत है और लिखती है। उसके पेज पर क्या हेड देती है, लिखती है कि 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157। अब सोच लिया 2020 है, तो 2020 से अब 2157, मतलब 137 साल आगे की बात इसमें बता रहा है। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उस डायरी में लिखती है, चूँकि उसके लिए आश्चर्यजनक बात होती है कि टॉमी जो है एक लड़का, दूसरा कैरेक्टर है, वो एक रियल बुक पाता है। रियल बुक मतलब वास्तविक बुक जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ये वाली बुक जो आपके हाथ में है या अभी मिलता है, इस बुक को पाता है। क्योंकि उन दिनों 150 साल बाद तो रियल बुक नहीं होगा, हो सकता है ई बुक हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक हो, इसलिए रियल बुक मिलना उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। जैसे आपके हाथ में आज कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए या 150 साल 200 साल पहले का कॉइन मिल जाए, तो व्हाट वुड हैपन, यू विल मेंशन द सेम इन योर डायरी। इसलिए वो बच्चा भी अपनी डायरी में मार्जी लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was time when all stories were printed on paper। अब इसका मतलब क्या, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब यह बुक जो था बहुत पुराना बुक था। और मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी एक बार उसको बताए, वंस मीन्स एक बार, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मतलब जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे
तब उसके दादाजी मतलब मार्जी के दादाजी हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनको बताए दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। बताए थे कि सारी कहानियाँ पहले पेपर पर ही प्रिंट की जाती थी। अब देखिए उन बच्चों को इतना आश्चर्य क्यों? वाई आर दे गेटिंग दैट मच सरप्राइज? बिकॉज दे आफ्टर 150 years they will be reading e-text, e-book, robot teacher, computer, classroom will be computer room. So original book or real book finding, this would be a source of surprise for them. This is why the children are getting surprised. अब मार्जी के दादाजी उसको बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी बताते थे कि पहले कहानियाँ रियल पेपर पर लिखी जाती थी। तो ये अभी मतलब 2157 ईस्वी में, मतलब 2157 ईस्वी में ये आश्चर्य की बात हो जाएगी, वो बताया जा रहा है। दे टर्न द पेजेस, और वो पेजेस पलटते थे, मतलब दादाजी पेजेस पलटते थे। तो पेजेस तो किताबों के पेजेस पलटते हैं, लेकिन आप जब ई बुक पढ़ते हैं आप अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो उसमें पेजेस कैसे पलटते हैं? उसमें पलटने का कुछ अलग है, लेकिन रियल बुक का पेज अलग से मतलब दूसरे ढंग से पलटते हैं। तो वहीं ये बता रहे हैं, दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकी। यहाँ क्रिंकी एक वर्ड है। येलो का तो मतलब आप समझते ही होंगे, ये क्रिंकी है। क्रिंका क्या मतलब होता है? सिकुड़ा हुआ। जैसे पुरानी किताबों के पेजेस सिकुड़ जाते हैं तो इसको रिंकल्ड भी कह सकते हैं, रिंकल्ड या सिकुड़े हुए या सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ कह सकते हैं। तो इस तरह से वो किताबों जो पन्ने थे वो पीले हो गए थे, और क्रिंकी मतलब सिकुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब देखिए, एंड इट वॉज ऑफुली का मतलब यहाँ वेरी, ऑफुली सी मीन्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। कह रहा कि एंड इट वॉज ऑफुली फनी, मतलब ये उनके लिए बहुत फनी था। क्या फनी था? टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, मतलब ऐसे शब्दों को पढ़ना जो एकदम शांत खड़े हों। किताबों में जो आपके रियल बुक्स हैं, इनके शब्द कैसे होते हैं, इनके वर्ड्स कैसे होते हैं, जहाँ होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर वो चल रहे होते हैं। तो बच्चे ये सपोज कर रहे हैं कि अरे आज का मतलब 2157 ईस्वी, 2157 ईस्वी में बच्चों को ये देख रहे हैं, ये आदी हो गए कि वर्ड्स आर मूविंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन जब पुराना किताब मिल गया 200 साल पहले, तो उसमें अब वर्ड्स जो है फिक्स है, खड़े हैं, स्टील है। तो उनके लिए एक फ़नी है। वहीं ये कह रहे हैं कि ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, मतलब जैसे स्क्रीन पे वो चलते हैं वैसे न चल करके उसके बजाय वो बुक में स्थिर है। तो ऐसे को पढ़ना एकदम फ़नी है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, मजाकिया है, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time. और जब वो पेजेस को पलटते थे तो और फिर पलट के पीछे जाते थे तो वही शब्द मिलते थे जो उसको उन लोगों ने पढ़ा था। तो किताबों में तो जो प्रिंटेड वर्ड्स है, यू नो कि दे आर फिक्स्ड, जिस पेज में जो वर्ड्स रहते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन थोड़े है कि स्क्रीन बदला वर्ड्स बदल गए। तो बच्चे वो उस अवस्था के हैं, उस समय के हैं जब स्क्रीन पर वो पेजेस बदलते हैं, वर्ड्स बदलते हैं। उनकी को तो किताब देखे नहीं, अब किताब देख करके उनको सरप्राइज लग रहा है, इसलिए किताबों के शब्दों के लिए को देख करके इतने वो सरप्राइज हो रहे हैं। सॉरी, आगे देखिए। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I won't throw it away. अब जी कहता है, जी से टॉमी कहता है मार्जी को, जी what a waste, when you were through with the book you just throw it away। मतलब जब ये क्या मतलब कहता है what a waste का मतलब क्या बेकार की बात है कि when you are through with the book, जब तुम बुक खत्म कर देती हो, you just throw it away, तो तुम इसको थ्रो कर देती हो, बाहर कर देती हो, फेंक देती हो। आई गेस, मुझे मतलब जैसा उम्मीद है कि तुम किताबों को पढ़ करके उसको फेंक देती हो। ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ
मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन में लाखों बुक्स हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में, और भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। ई ओंट थ्रो इट अवे, आई ओंट थ्रो इट अवे, मैं इसको मैं नहीं फेंक सकता, मैं नहीं फेंकूंगा। तो ये कहती है सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती है मेरे साथ भी यही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। क्या मार्जी कहती है कि ये मेरे साथ भी वही है। सी वॉज 11 मतलब वो 11 साल की थी, एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी सारी किताबें, टेली बुक्स मतलब टेलीविज़न पर की किताबें, ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ये रियल बुक्स। तो टेली बुक्स यहाँ नया शब्द बनाया गया है आज से 150 साल बाद। अब ई बुक्स के जगह पर अब टेली बुक्स आ जाएगा, तो उन बुक्स के लिए नया शब्द एक टेली बुक्स बनाया गया है कि एज टॉमी हैड, मतलब जितना टॉमी ने टेली बुक्स को देखा था उतना मार्जी ने नहीं देखा था, क्योंकि टॉमी जो था ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था और मार्जी 11 ईयर्स की थी। आगे है सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब सी सेड वो पूछती है कि तुम इसे कहाँ से प्राप्त किए। तो इन माई हाउस कहता है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बिना देखे हुए उसको पॉइंट करता है, मतलब बताता है बिना देखे हुए। किसको? मार्जी को बिना देखे हुए बताता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। ही वॉज बिजी रीडिंग मीन्स ही वॉज बिजी वाइल रीडिंग और बिजी इन रीडिंग, दिस इज वाई ही जस्ट पॉइंटेड विदाउट लुकिंग एट हर। और कहा इन द एटिक, इसमें एटिक है। एटिक का मतलब घरों में जो छज्जा होता है नीचे, छत के नीचे, तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं छज्जा। कहाँ? छत के नीचे वाला, छत के नीचे, अंडर द सीलिंग वुड द प्लेटफॉर्म यू फाइंड, दैट इज छज्जा, छत के नीचे। तो छज्जा पर इसको मिला था। तो फिर पूछती है व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में है? तो बताता है स्कूल। मार्जी पूछती है कि व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट मतलब यह किसके बारे में है? तो अब टॉमी बताता है स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। अब मार्जी को ये बात अजीब लगती है। स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कार पूर्ण ढंग से देखती है। तिरस्कार करना मतलब केयर नहीं करना, बिना केयर किए हुए वो कहती है स्कूल, ऐसे भौं सिकोड़ करके बोलती है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहती है अरे स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मुझे तो स्कूल से नफरत है भाई। आगे कहती है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से नफरत था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब नफरत और पहले से ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब स्कूल के बारे में भी किताब में लिखा हुआ, क्योंकि ये तो 150 साल 2157 ईस्वी की बात है। आज आपको स्कूल लग रहा होगा कि अरे स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब कैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन 150 साल बाद ये आइजैक असिमोव कहते हैं कि साइंस इतना एडवांस हो जाएगा कि आपका घर ही स्कूल हो जाएगा, घर में ही सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स, वो भी रोबोटिक टीचर्स होंगे, और सब चीज़ आपको घर में अवेलेबल कराया हो सकता है, ये संभावना हो सकती है। ये एक फिक्सन है, ये कल्पना है, ये बताया जा रहा है। तो उस समय के बच्चे स्कूल को कैसे देखेंगे? स्कूल को समझेंगे अरे बेकार का बिल्डिंग में, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ लैंड, वेस्टेज ऑफ दोज ऑल मटेरियल, वो ये समझेंगे। वो बात यहाँ कह रही है, और वो इसलिए वो अब इस किताब को देख करके और स्कूल के प्रति हेट्रेड बढ़ गया। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब देखिए इसमें द मैकेनिकल टीचर, अब तो वो बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो टीचर कैसा होगा? जब बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे तो टीचर कैसा होगा? मैकेनिकल टीचर होगा, जो कि रोबोटिक टीचर है। अब वो टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट ले रहा है, हैड बीन ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और ख़राब से ख़राब वो कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, और उसकी माँ ने जब तक उसका सिर, मतलब सेकंड हर हेड मतलब उसको उसने वो नहीं किया, चेक नहीं किया, तब तक वो गलत करती रही थी, गलत पे गलत करती जा रही थी। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए को बुलवाई। काउंटी इंस्पेक्टर अब ये एक ऐसा टर्म है जो आज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब
कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर पे जो रोबोटिक टीचर हो और जो ऐप्स हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, उसको वो ठीक करता हो, उसमें एडजस्टमेंट बैठाता हो या उसे ठीक करता हो, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसी से सेंस में है। अब देखिए यहाँ इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर, अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेंगे, तो वहीं जो मैकेनिकल टीचर को चेक करते थे करेंगे। एनीवन who checks the मैकेनिकल टीचर, मतलब जो मैकेनिकल टीचर को चेक करेंगे उनको काउंटी इंस्पेक्टर बताया गया। तो अब चूंकि ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार हो रहा था और मार्जी बार बार और बुरा और गलत करती जा रही थी, इसलिए उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर मतलब उस मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए बुलवाई। जैसे आपके क्लास में टीचर अच्छा नहीं करते हैं तो आप प्रिंसिपल के पास जाते हैं, अभी मतलब रियल क्लासरूम सिचुएशन में। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं होगा तो एक प्रिंसिपल टाइप काउंटी इंस्पेक्टर होगा जो जितने कंप्यूटर्स है जहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो वो बताएगा, वो सेंस है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब लिख रहा है उस आदमी के बारे में जो काउंटी इंस्पेक्टर था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गुला थुला या गोल मटोल आदमी था। विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उस मतलब एक छोटा सा आदमी था जिसका चेहरा लाल और उसके हाथ में औजार का बॉक्स था विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें तार और डायल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल, वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब टीचर को लिया। मार्जी हैड होप्ड ही वोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी मतलब यह समझ ली थी कि हो सकता है कि फिर इसको ये एक साथ नहीं कर पाएंगे, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन उसने तो क्या किया, एक घंटे के बाद, 1 या 2 घंटे के बाद फिर उसको फिक्स कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मतलब फिर अब लार्ज बड़ा सा और ब्लैक अगली सा, ब्लैक अगली मतलब कुरूप जो सुंदर ना हो, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द क्वेश्चंस वर शोन, जिस पर सारे क्वेश्चंस दिखाए गए थे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और पूछे भी गए थे। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। और कौन सा पार्ट मार्जी को सबसे ज़्यादा उसमें हेट होता था, नफरत होता था, तो जहाँ वो होमवर्क रखने का स्लॉट था। अब जैसे आप यहाँ अभी होमवर्क कैसे देते हैं, तो टीचर को दे देते हैं अपनी नोटबुक, लेकिन जब वो सिचुएशन होगा कि कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, घरों में आपका क्लासरूम होगा, तो होमवर्क कहाँ रखा जाएगा, तो वहाँ कहीं स्लॉट होगा जहाँ होमवर्क रख देंगे और कंप्यूटर जाँच कर लेगा। तो होमवर्क स्लॉट से उसको सबसे ज़्यादा नफरत था। आज भी होमवर्क से, जैसा कि आप लोग को होता है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, मतलब एक पंच कोड उसको देना होता था वहाँ। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, और यह पंच कोड उसको कब सिखाया गया, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बिना समय लिए वो मैकेनिकल टीचर मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। आगे है 5 नंबर पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। अब इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, जो चेक करने के लिए, जो मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए आए थे, उन्होंने अब मार्जी को थपथपाए। पेटेड मार्जीज हेड मतलब पैट का मतलब थपथपाना, थपथपाए और मुस्कुराए। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ को बोले, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब ये छोटी बच्ची का मिस्टेक नहीं है। मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, मतलब मिसेस जोन्स मार्जी के मम्मी का नाम है। मिसेस जोन्स ये छोटी लड़की का मिस्टेक नहीं है, उन्होंने कहा। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और बताया कि हो सकता है ज्योग्राफी सेक्शन जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो गया था, इसलिए बच्ची के द्वारा गलत हो जा रहा था। आई हैव
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेक्शन तेज हो जाता है। मैंने इसको आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं इसको 10 साल के लेवल का बना दिया हूँ। मतलब उम्र, बच्चे के उम्र के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट्स में, तो उम्र के हिसाब से सेट कहा कि मैंने कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑन हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और कहा कि इसका जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का, किसके, उस बच्ची के प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर मार्जी के सिर को थपथपाए, या उसको ऐसे सिर को जैसे हम थपथपाते हैं आशीर्वाद स्वरूप, या जैसे भी। आगे, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी अब निराश हो गई थी। क्यों हो गई थी? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ऐसा लगता था कि वो मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए बाहर लेके जाया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए लेके गए थे, तो इसको भी उम्मीद था कि 1 महीने के लिए लेकर के जाएंगे। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और हिस्ट्री सेक्शन जो था, सेक्टर जो था, 1 महीने तक के लिए ब्लैंक था, मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ाना पड़ा था टॉमी को। तो मार्जी भी सोच रही थी ये ज्योग्राफी सेक्टर भी 1 महीने के लिए चला जाएगा और मैं बिना ज्योग्राफी टीचर के रहूँगी, तो ये इस उम्मीद में थी। लेकिन ये तो ठीक हो गया, इसलिए मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। वाई वॉज मार्जी डिसअपॉइंटेड? बिकॉज ही वॉज इन द होप दैट हिज ज्योग्राफी सेक्टर विल बी ऑल्सो टेकन अवे at least for 1 month, because she was experienced with that Tommy whose geography teacher was also kept apart for 1 month at least. तो इसलिए इस उम्मीद में थे कि this would happen, but it didn't happen. This is why she was disappointed. आगे है, so she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी को कहा, why would anyone write about school? तो पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसके वो और देखता है, विद वेरी सुपेरियर आइज, सुपेरियर आइज मतलब सुपेरियर और इन्फेरियर वर्ड यू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा सुपेरियरिटी के साथ उसको देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, कहता है अरे स्टूपिड हो तुम, मूर्ख हो, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसे नहीं थे, इसलिए उन पर लिखा गया। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और वो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, मतलब थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए वो कहता है कि हमारे जैसे नहीं थे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब एक एक वर्ड को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब एक एक शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए कहता है कि हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, इसलिए स्कूल के बारे में लिखना जरूरी है। स्टूपिड, वो कहता है मार्जी को। मार्जी वॉज हर्ट सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, अब मार्जी को थोड़ा सा तकलीफ होता है इससे। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब मुझे नहीं पता कि उन दिनों किस तरह के स्कूल होंगे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, मतलब कुछ देर के लिए उस किताब को उसके कंधे के ऊपर रखकर पढ़ी। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब उनको टीचर भी थे, वो कहती है। देन सेड, आगे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब ये टॉमी कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, सच में उनके पास टीचर थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर मतलब नियमित टीचर आज जो तुम पढ़ती हो वैसे नहीं थे। इट वाज अ मैन, वो आदमी हुआ करते थे, मतलब सेंचुरीज एगो कौन टीचर हुआ करते थे? आदमी, जैसे हम लोग आज आदमी है ना टीचर। तो ये टॉमी भी कहता है कि उन दिनों मतलब 100 साल 200 साल पहले टीचर आदमी हुआ करते थे, आज आदमी टीचर नहीं है। आज क्या है? आज मतलब 2157 ईस्वी जो डायरी के पेज में लिखा हुआ है, आज टीचर क्या है? मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर है, रोबोट है, वो पढ़ाता है, वो एक ऐप है वो पढ़ाता है। तो बच्चों के लिए अभी ये सरप्राइजिंग फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उन दिनों सैकड़ों साल पहले आदमी हुआ करते थे। अब इनको संदेह भी है इन बच्चों को कि आदमी उतने ज़्यादा नॉलेजेबल थोड़े होंगे जितना कि आज रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर है। वही कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कहती है आदमी, अरे आदमी कैसे टीचर हो सकता है?
वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। कहता है ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, मतलब वो भी जो आदमी टीचर हुआ करते थे वो भी लड़के लड़कियों को पढ़ाते थे, एंड गिव देम होमवर्क, और होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो इमारजी कहती है कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ मतलब आदमी उतना स्मार्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे कंप्यूटर टीचर इमारजी के स्टेटमेंट है, श्योर ही इज, तो टॉमी कहता है श्योर ही इज मतलब सच में वो ऐसे है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, माई फादर जैसे मेरे पिताजी मेरे टीचर के बराबर जानते हैं, ये टॉमी कहता है। किसके पिताजी? टॉमी अपने पिताजी को कहता है कि माई फादर नोज एज मच एज अ टीचर। कौन से टीचर? आज के प्रेजेंट टीचर, मतलब वही 2157 के जो रोबोटिक टीचर है उनके बराबर मेरे पिताजी जानते हैं। तो इस तरह से वो कह सकता है कि श्योर दे वुड हैव ऑल्सो द सेम नॉलेज व्हाट द रोबोटिक टीचर इज हैविंग। तो दिस वाज ऑल स्टूडेंट फॉर द डे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जहाँ कहीं भी है आप पता करें, डिक्शनरी भी देख सकते हैं, आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।